आपके सामने जब सिमर अरे सिमर ने मारा अरे आपके सामने जब सिमर ने मारा बाबा। ये एक वीडियो है دیگه تشکری में خواهی آقای منوره که بیچاره دزی اخی سنروف رواز کرده. یعنی دیگه دوستان اینجا سیبیل هم زده، اینا انتظامات خوب کرده، چای مای بیسکیت everything دیگه اینجا ارگنایز است برای زاداره. Welcome to my channel. السلام علیکم یا علی مدد علیه الصلاة والسلام. امید مونم که جور باشین، خوش باشین، خوش آمدید میگم شما در یوتیوب چینل خوب دوستا امروز مو رئیس کد رفیقات منجی داشرخانه بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها که است میرسن میرا کوی کده و کاظمی برادرز است. تقریبا زی دندنونگ اگر توی حساب کنی تقریبا یک 50 منٹ دور است. خوب حالی که رئیس شده کدمو است آقای مرتضی آقا است. سلام الله خیریت بخیر. خیر جان چجور است آقا رئیس جان؟ دیگه بخیر. آشورخانی و حسینی زهرا انشالله میرسن ما کاظمی برادرز ماتا مزاداریه یک گنٹ راست تقریبا. خوب زبردست دیگه دوستام شده دیگه تمام باری بخیر دیگه است. اینجا است آقا جان آقا رضا زای بخیر. بخیر جان چجور است؟ شکر. شکر رئیس شدین آقا جان بخیر. ها دیگه باری بخیر. خوب بخیر مزاداری دیگه آقا میر مایا بخیر دیگه گو پیغام برای مومنین مومنات. हाँ अभी ये नहीं कि तू सब्सक्राइब करना फैलन दिया या पैगाम हर जाए भाषण जोर भाषण दिया इंशाल्लाह دیگه کدمو است آقای منور. سلام علیکم رضوان بھائی. السلام علیکم جورین بخیر جان چجور است؟ بخیر. الحمدلله جور تیار. شکر بھائی. در آرامنه سیتی انتر شده. نکو آقای مرتضی مزاق کهی منما امی سیتی نیست امی چیز است؟ تازه مو ده جندینو میتونم سیتی گوشنه نشده آقا جان؟ یاره گشنخش دیگه چیکار کنی مجبوری اگو جای گشتی های چیپس وغیره گو حلال ملال فود باشه نیزی آقا جان اگو جای روگ نمونی بری یک الکی آنچ والا تا که اونجی نظر مظر شروع مشنه چیز مخری النواب بگم تو را؟ النواب نه بس لیت میشه اونجی بیرسی بس تا که وادر بگیره بس قصه لنبا میشه بوری یک الکی آنچ گو چیپس میپس خودم گوش نشده اصلا تمامی گوش نشده ما از خاطر بیاد سوچ منم مسخره نشده گوش تازه گفتم ما گوش نشده. خب این برادر ولی وستگیت بریج رسیده دیگه یک شارت از اینجی میگه آقای رضوان ضرور ویدیوش سوخ کن سبسکرایب کن کیم اور استیف کرده دیگه سن روف واز کن شارت میگروم دزی اخی خلاصه هرشی است بیچاره خواری مونه دیگه
مورم عذاب نخواری هم مونه دیگه حال چیکار کنی مجبوری سبسکرایب نکردی کم ناجایز میشه کده دی بس خدا کنم چیزی هم دی روا ببره این مضبوط وان نمو ان شاء الله. یک ویدیو دیگه تشکری میخوای آقای منوره که بیچاره از دزی اخی سنروف رو واز کرده که یک شارت بگیری برای شما. تشکر آقای منور بسیار زیاد. خوب دوستا دیگه اینا بخیر رسیدی گاڑی ماڑی پارک شد رایی دیگه واک کده رایی رشکاش جای نبود کم دور پارک کده بوری دیگه اینا بخیر درون رفته شمور نشو میدی ماتا مزاداری مجلس everything کده آقای رضوان باشه نمیتر پیش بیش واش کده بورین توخ کده بورین دیگه یعنی دیگه دوستا اینجا سیبیل هم زده اینا انتظامات خوب کده چای مای بسکیت everything دیگه اینجا ارگنایز است برای عزاداره. तो अब आप गौर फरमाइए कि मौलाए कायनात की अजीब मनक़बत है। सारे अहले सुन्नत के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि पैगंबर के कंधों पे सवार होने वाले अली। अब तेजी के साथ एक बात और बात वक्त में तमाम हो जाए। उलमा ने लिखा है कि मेराज की रात पैगंबर के साथ कुछ अजीब वाक़यात हुए जिनको पैगंबर ने बयान किया है। उनमें से एक वाक़या यह है कि पैगंबर फरमाते हैं जब मैं शब मेराज जा रहा था अर्श की तरफ तो एक मरतबा मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। फ़अहसस्तु फ़ी कबदी बर्दुन, मैंने अपने कलेजे में उससे ठंडक महसूस की। ठंडक होती है अपने से, जलन होती है दूसरे से। अर्श आज़म पर है, कहते किसी का हाथ आया, हवाला इतना बड़ा दूंगा जितना बड़ा ये मिंबर है। शेख जाफर काशिफुल ग़िता ने जन्नतुल मावा में ये वाक़या लिखा है। फरमाते हैं कि पैगंबर अकरम मेराज की रात पर थे और शाफ़ई ने इस मंजर को 2 मिसरों में नज़्म किया है। शाफ़ई ने जब ये मंजर देखा कि मेराज की रात नबी के कांधे पर है किसी का हाथ, मैं तो नहीं कहता अल्लाह का हाथ, नबी के कांधे पर है किसी का हाथ, और मेराज के बाद बुतों को तोड़ते वक्त नबी के कांधे पर है अली के कदम। अब मिसरे का तहम्मुल कर सके तो पेश करता हूँ। शाफ़ई कहते हैं अलीयुन वादिउ अक़दामहु फी महल्लिही वदअल्लाहु यदहु लैलतल मेराज। शाफ़ई कहते हैं अली अपने कदम वहाँ रखते हैं जहाँ मेराज की रात अल्लाह हाथ रखता है। मैंने हवाला दे दिया, जाओ जाकर देखो, ये है अली की बुलंदी। बस अजीजों, इसी तो देखिए मौलाए कायनात का मामला बड़ा अजीब व गरीब है और इसीलिए अली को कहा जाता है मजहरुल अजाइब। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस तक मेरे साथ सफर कर रहे हैं, कितने वहीं रुक गए। हवाला मैंने दे दिया और मैंने सवाल को क्रॉस चेक किया है दीवाने शाफ़ई के अंदर, वरना मेरा शाफ़ई से क्या लेना। दीवाने शाफ़ई में ये मिसरा लिखा हुआ है और जन्नतुल मावा में शेख जाफर काशिफुल ग़िता ने लिखा है कि अली अपने कदम वहां रखते हैं जहां मेराज की रात किसी का हाथ होता है। चलो मैं अल्लाह नहीं कहता इसलिए कि हम नहीं मानते अल्लाह का हाथ होता है, लेकिन शाफ़ई ने तो यही लिखा है। अब एक जुमला रोक के कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक कहलाते हैं दस्तगीर जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह को भी 7वें आसमान पे पकड़ा था। उनके बारे में लिखने वालों ने लिखा है कि कयामत तक के वलियों के कंधे पर उनका पैर है और इमाम मेहदी का पैर उनके कांधे पर है। अब सही गलत की बहस तो यहाँ करने में आया नहीं, लेकिन एक नतीजा तो मैं देना चाहता हूँ। वो नतीजा ये है कि जिसके पैर वलियों के कंधे पर हो वो तुम्हारा पीर होता है और जिसके पैर नबी के कांधे पर हो वो हमारा
एक दिन दक्कुल बाब किया कंबर ने दरवाजे पर, और फिजाई दरे खैमत दरे दरवाजा दरे दौलत पर पूछा, ऐन अली इब्न अबी तालिब। कंबर ने पूछा, मेरे मौला कहाँ है? फिजा ने कहा, फिस समाए युकस्सिमु अर्ज़ाकुल मलाइका। मैंने तो तर्जुमा भी नहीं किया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिजा कहने लगी, आसमानों में गए फरिश्तों का रिज़्क़ बांटने के लिए। कंबर कहते हैं, मैं चला, अबा का दामन मोड़ता जा रहा था कि ये फिजा ने क्या दिया है। अभी कुछ ही देर हुई, रास्ते में रसूल मिले। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, ये फिजा भी अली के बारे में क्या क्या बातें करती है? क्या है? तो मैंने फिजा से पूछा, अली कहाँ है? तो कहती है, आसमानों में रिस्क बांटने गए। पैगंबर ने फरमाया, या कंबर ला तताज्जब मिन अम्रिल्लाह, ए कंबर, अल्लाह की बातों से ताज्जुब ना किया करो। वाक़िया है अली का, और कहा अल्लाह की बातों से ताज्जुब ना किया करो। ये ताकत अली की नहीं, अल्लाह की दी हुई है। मसहा यदहु अला ऐन कंबर, कंबर की आंखों पे हाथ फेरा। कंबर कहते हैं, मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं पहले आसमान पे था। मैंने देखा फरिश्तों की कतार है, अली रिज़्क़ बांट रहा है। दूसरे आसमान पे पहुंचा, जो चुप हो गया मैं समझूंगा वो रह गया। दूसरे आसमान पे पहुंचा, मैंने देखा फरिश्तों की कतार है, अली रिज़्क़ बांट रहा है। तीसरे आसमान पे पहुंचा, अली रिज़्क़ बांट रहा है। 7वें तक पहुंचा, अली रिज़्क़ बांट रहा है। कहते हैं, अब जब मैं वापस पलटा तो उसी जगह में खड़ा था जहां मैं रसूल के सामने था, और रसूल के बराबर में अली खड़े मुस्कुरा रहे थे। पूछा, या अली आप कहाँ थे जब मदीने के फकीरों को खाना नसीब? मदीने के फकीरों को। छोटी बात है, फिर कह रहा हूं, इस पर ताज्जुब न कीजिएगा। हवाले इतने आपके सामने मैं रख सकता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि अली को अकीदे से माना जाए, हवाले से नहीं। अगर से अकीदे का हवाला है, मैं ब्लैकमेलिंग का आदी नहीं हूं। आप कहाँ गए, क्या पूछेंगे, क्या है, कहाँ है? छोटी चीज है, ये बतलाइए, रिस्क तकसीम करने वाले फरिश्ते हैं या नहीं? फरिश्ता तो रिस्क तकसीम करने वाला हो, और जो फरिश्तों के उस्ताद का भी उस्ताद है। उस अली के लिए जितना भी फजीलत में आप सोचें, जितना भी अली के लिए सोचें, वो कम है। अच्छा, हद बता देता हूँ, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। खुद अली ने फरमाया, इजअलू लना रब्बन फक़ूलू फीना मा शिअ्तुम लन तबलगू। अली ने कहा, बस हमारे लिए एक रब करार दे दो, फिर हमारे लिए जो चाहे कहो, तुम हमारे फज़ाइल पढ़ ही नहीं सकते हो। तुम नहीं पढ़ सकते हमारे फज़ाइल का तहम्मुल क्या है। एक रिवायत में सही दर्जात में मौजूद है कि मासूम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें वो फजीलतें तक दी जिनका तहम्मुल या वो फरिश्ता कर सकता है जो मुकर्रब हो, या वो नबी कर सकता है जो रसूल हो, या वो मोमिन कर सकता है जिसके दिल का इम्तिहान ले लिया गया हो। हर कोई हमारे फज़ाइल नहीं सुन सकता। हमारी मजलिसों की जीनत विलायत है। इन बुजुर्गों ने एक तहजीब मुंतकिल की है इन मुल्कों तक, इसकी अमानत की, इसकी रियायत करो। इस खुशबू को मुसलसल रखो, ये खुशबू खत्म ना होने पाए, या ज़दारी का ढंग बदलने ना पाए, इसलिए कि यही तो पहचान है, यही तो पहचान है। अली के फ़ज़ाइल का बदला हसन से, हुसैन से, सिर्फ हसन से नहीं, हसन की औलाद से, सिर्फ हुसैन से नहीं, हुसैन की औलाद से। 13 साल के बच्चे का क्या जुर्म होता है? जुर्म नहीं। 4 बरस की बच्ची का क्या जुर्म हो सकता है? कोई जुर्म नहीं। सिर्फ बदला दादा के फ़ज़ाइल का। कासिम ने भी दादा के फ़ज़ाइल का बदला चुका, शहज़ादी सकीना ने भी अपने दादा के फ़ज़ाइल का बदला चुका। जितना भी रो सकीना पर कम है, तुम्हें नहीं पता सकीना को तमाचे कहाँ कहाँ मारेगा। कोई तहम्मुल कर सकता है इन जुमलों का? कोई सोच सकता है कासिम पर क्या कयामत गुजरी? खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो इस मजलिस में दोबारा आएगा। और जो चला गया वो मादर हुसैन से कहे, बीवी मैं शर्मिंदा हूँ, कासिम की लाश के टुकड़े ज़्यादा थे, मेरे आंसू बहुत थोड़े थे। सकीना को लगने वाले तमाचे ज़्यादा थे, मेरे आंसू कम थे। अल्लाह ऐसे याद करके रो कि सकीना जब हुसैन को रोती थी, सकीना को तमाचा मारा जाता था। अजरकुम अल्लाह। औलाद वाले हो, बच्चियों वाले हो, मुझे बताओ, छोटे बच्चे अगर जिद करें तो उनकी जिदों पे कितना प्यार आता है। कैसे लईम थे जिन्होंने सकीना को सवाब समझ के मारा। अजरकुम अल्लाह। बस एक मंजर सुनो, मुझे इजाजत दो, बड़ा शानदार कुर्सा किया तुमने। वो बच्ची जिसे यतीमी का माना
शाम गरीबा की चादर करबला ने ओढ़ी, किसी ने खैमों को आग लगाई, किसी ने बच्ची के दामन को जलाया, किसी ने बच्ची के तमाचे लगाए। अगला जुमला सुन सकोगे, जो बच्चियों वाले हैं मुझे माफ कर देना। सादात गैर सादात बैठे हो, अजीजो 4 बरस की बच्ची किस शिद्दत से बुंदे खींचे गए मुझे नहीं पता, लेकिन रिवायत ये कहती है मुख्तार के सामने लईन को लाया गया। मुख्तार ने कहा बता तेरा जुर्म क्या है? कहता अमीर मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मैंने 2 बालियां एक बच्ची से छीनी है। एक बड़ा मुख्तार पूछता है किस बच्ची की बात कर रहा है? किसी ने सीना पीट के कहा ये हुसैन की बच्ची की बात कर रहा है। मुख्तार ने कलाइयों को आस्तीनों को चढ़ाया, कहा क्या किया तूने जुल्म? कहा मुख्तार जब खैमे जल रहे थे एक बच्ची कभी दाएं दौड़ती थी कभी बाएं दौड़ती थी, उसके गोशवारे चमक रहे थे, मेरे दिल में लालच पैदा हुई, मैं आगे बढ़ा। बच्ची ने कहा मेरे करीब ना, मैं शैतानी हूँ, मैं बुंदा उतारे देती हूँ, लेकिन मुझे ये खौफ था कोई और बालियां न लूट ले। ये लईन आगे बढ़ा, मुझे सादात माफ करे। कहता है मैंने बालों के बुंदे को अलग करना शुरू किया। साहिब इकलील मसाइब ने ये रवायत लिखी है। कहता है एक बाली बहुत आराम से जुदा हो गई, अब जब दूसरी बाली जुदा करने लगा, वो बाली कान से निकल नहीं रही थी। लईन कहता है फौज आने वाली थी, मैंने एक हाथ से बच्ची के बालों को पकड़ा, एक हाथ से बाली को खींचा, मुख्तार तक से खड़ा हुआ। कहता फिर क्या हुआ? कहा बच्ची ने कान को पकड़ के कहा चाचा अब्बा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। सकीना पर रोने के दिन है, सकीना की शहादत के दिन है। ऐसे रो कि मौला करबलाए मौला बुला दे तुम सारों को। है अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। गरीब बाबा की गरीब बेटी का बहन है, मेरे साथ कहो। है अब मुझे कोई सकीना। या ज़हरा या साहिबा ज़मान, अपनी सदाएं आज़ाद करेंगे। रोती आंखों के साथ मातम की तैयारी करनी है, मिलके कहो। अब मुझे कोई हाय सकीना, हाय शाम बीबी का बैन सुना। अरे कैदी कहता है कोई, अरे कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा। है अब मुझे को या ज़हरा या साहिब ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल पर बाबा। है अब मुझे को मातमियों मातम की तैयारी करेंगे। हुसैन की बेटी हुसैन का सर लेकर क्या बयान कर रही है? पहला बयान सुनो, जैसे चाहे सुनो। अरे नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, अरे उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, अरे आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। है अब ए बाबा आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही। अरे रो पड़ी कूफे के दरबार में, अरे मैं सह न सकी आपके सामने जब सिमर, अरे सिमर ने मारा
अरे आपके सामने जब सिमरन मारा बाबा है अब मुझे को या साहिब जमान एक बन बनना है मसाइब का मेरे मातम है मौला हिम्मत दीजिए कलम मेरे साथ नहीं है अरे उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर अरे कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर अरे मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा अरे मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा अरे अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता या साहिब
वालों, चंद दिन बाकी हैं हुसैन की शहज़ादी की शहादत। मुझे कुछ लोगों का हुक्म है अली हुसैन भाई की जानिब से। आओ जिंदान शाम की तारीकी में हुसैन मौला की शहज़ादी इमाम सज्जाद की मजलूमा बहन ने भाई को मुखातिब करके जो बयान किए हैं सुनाता हूँ। है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, है सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। जो शहज़ादी कल भी जिंदान शाम में तन्हा थी, आज भी तन्हा है। क्या कहा हुसैन मौला की इस मजलूमा बेटी ने इमाम सज्जाद की कड़ियों को हिला के, ओ तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुख दे ओ तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुख दे है मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। रोने वालों, आओ इमाम सज्जाद की बारगाह में पुरसा देना उनकी मजलूमा बहन का। क्या कहा आगोश इमाम सज्जाद में शहजादी ने अपने भाई सज्जाद से, भैया सज्जाद अरे लगता है अंधेरे से डरते सकीनों को, भैया लगता है अंधेरे से डरते सकीना को, तुमसे मेरे बाबा का, तुमसे मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया, और तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। अली अकबर के बाबा को रोते रहो। मातम किया अली अकबर के नौहे पर, दो आंसू जनाब उम्मे लैला की बारगाह में नजर करते हैं। फिर मातम करेंगे। बीबी आप सबकी इस अज़ा को, इस मातम को, इस गिरिए को कबूल फरमाए। एक नौहा मुसलसल पढ़ा जाता है। जनाब अली अकबर का करबला मोहल्ला में भी पढ़ा गया। आज दोबारा से दो तीन शेर आप रोने वालों की नज़र करता हूँ। इसमें एक गरीब बाप की कैफियत है जो महसूस कीजिएगा। और मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि अगर रोना ना भी आए तो हाय ज़रूर कर लिया कीजिए। अली अकबर की मुसीबत है, अली अकबर की मुसीबत है। हुसैन की सबसे बड़ी मुसीबत है अली अकबर की मुसीबत। हुसैन क्या कह रहे थे अली अकबर से? खामोश ना हो, बाप से बातें करो अकबर, आज़ाद करो अपनी सदाएं। अली अकबर की मुसीबत मसाइब पढ़ रहा हूँ। हुसैन कैसे दिल बहला रहे थे अली अकबर का कि किसी तरह खैमा का हालत ले जाएंगे। है खामोश ना हो, बाप से बातें करो अकबर, अरे हम तुम्हें को मिला देंगे, हम तुम्हें को मिला देंगे, फूफी जान से जाकर
खामोश ना हो। हाय अली अकबर, हाय अली अकबर, जितने जवान हो हाय करना अली अकबर की मुसीबत पर। मैं मिसरा पढ़ने लगा। है खामोश या साहिब ज़मान, मौला हिम्मत दीजिए मैं पढ़ सकूँ ना अली अकबर। सुनो रोने वालों, नाम हुसैन मिसरा सुनना। क्या कहा हुसैन ने? अरे लाल ए लाल कलेजे में, ए लाल कलेजे में अभी दर्द तो होगा। अरे निकला है लहू इतना, बदन सर्द तो होगा। अरे तुम चुप हो तो चलते हैं, मेरे कैब पे खंजर खामो। या ज़हरा, या ज़हरा, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, बीबी कबूल फरमाना। इन जवानों का रोना, इनका मातम कबूल फरमाना। अरे तुम खुद भी समझते हो ये मजबूरी मेरी है। अरे आहिस्ता जो चलता हूँ, कमर टूट चुकी है। अरे आहिस्ता जो चलता हूँ, कमर टूट चुकी है। अरे थोड़ा थोड़ा सफर बाकी है, हिम्मत करो दिल भर। खामोश ना या अरे दरिया, ए बेटा दरिया पे गए होगे जो लड़ते हुए बेटा। अरे जल्दी से बताओ मेरा फटता है कलेजा कि किस हाल में है लाशाए अब्बास से दिलावर। अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की, पढ़ो सारा जवान हो, पढ़ो गया। अकबर का लहू शहर की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकबर का लहू शहर की हवा तक पहुँच गया। हाय 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 हुसैन। हाजिरों को मन अल्लाह रोने वालों, पूरी करबला बंद है इस मिसरे में। आओ आओ जो मसाइल की कैफियत बनाए बैठे हो, जितने जवान मातमदार हो, बुजुर्गान बच्चे, सुनो गुरबत इमाम हुसैन का मिसरा सुनना। ओ दस्तारे से बोमा की, दस्तारे से बोमा की, रिला तक पहुँच गया। अकबर हाय 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 हाय। एक मिसरा मसाइब का सुर फरमाता। हाय अकबर का लहू शहर हाय हुसैन गई। हवा तक पहुँच गया। अरे आवाज रंग से आई। सब मसाइब सुनते हो ना कि हुसैन मजलूम किस अंदाज से अली अकबर की सदा पे आए हैं। अरे आवाज रंग से आई कि बाबा बाबा मेरे बाबा मैं गिर पड़ा। अरे आवाज रंग से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा। गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन, सदा
पहुंच गया। अरे ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर। अरे ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर। ज़ैनब का खून खा के, ज़ैनब का खून खा के शिफा तक पहुंच गया। हाय ऐसे गिरी की लाश पे, ऐसे गिरी हकम में की लाश पे। ज़ैनब का खून खा के, ज़ैनब का खून खा के शिफा तक पहुंच गया। लहू शह की आवाज़ तक पहुंच गया। बाबा मेरा फिरा है माद तालो का बाबा मेरा बिरा। ये सारे नुआ खान हैं। सैन गाजी दी बैन पावे ओ करबल विच बाजी दा हुसैन हुसैन मेरा फिरा है माद तालो का मेरा फिरा है माद तालो का बाबा मेरा फिरा है। पढ़ो सारे जियो माला के मातमदारों बीबी कबूल फरमाए। पढ़ो सारे है माद तालो का बाबा मेरा बिरा। ओए वक्त किसे तेरा जरा अच कर विच आया। ओए एक सांग ते मेरी चादर सी, एक सांग ते मेरी जाया मैं ओदे सीनो होए तक दी रही ओ चादर तक दरया। हुसैन 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 ए बाबा मेरा फिरा